Here is the complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 11, the jungles of Chhattisgarh. The jungles of Chhattisgarh were explored by uncle's binoculars. Birds at a place appeared near and easy to trace. Uncle climbed a tree and saw panthers there. Then suddenly Kalu the monkey played tricks and looked funny. With these lines, let's begin the chapter. Make a note in your diary of animals that your uncle saw in the jungle. So the above lines, उसके बेसिस पे ये कुछ notes बने हैं. Diary writing. Discuss student what is diary, why diary writing is done, इसके क्या benefits हैं. Okay. 29 April 2005. Today it was quite hot. The local tribals were collecting honey in the jungle. I talked to them. They told me a lot of interesting things about the jungle which were unknown to me. They told me about the living creatures of the jungle and also the use of many wild plants. So this he did on 29 April. On 20 June 2005, it was wonderful day today. I saw many species of plants, insects and birds. I saw an insect eating a bug. There was a spotted bird catching a fish. For the first time, I got to see a bird's nest. On 21st September 2006, he writes in his diary, it was raining today. All the creatures of the jungle hide themselves in the cluster of trees. Cluster यानी पेड़ के झुंड में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना पेड़. The thick vegetation was preventing their creatures from strong rain showers. There was total silence in the jungle because of the rain, and here it ends. Have you ever been to a jungle? Yes, I have seen a jungle. If not, then please visit Jungle Safari. Next one. What have you seen in a jungle? In a jungle, I saw tall trees, many birds, deer, and peaceful silence. Instruction. Draw a jungle scene in your notebook. Come, let's find more about the jungles of Chhattisgarh. Part of Chhattisgarh has thick jungles, thick घना jungles, whereas some part have scanty vegetation, यानी कि हल्का फुल्का जंगल. There are a variety of trees in these jungles. To name a few, we have sal, sagon, teak, mahua, shisham, haldu, amla, bamboo, etc. So Chhattisgarh, if we go to the history of Chhattisgarh, earlier Chhattisgarh was completely dense forest. Chhattisgarh forest ही था. अगर हम इसमें पास्ट में जाएंगे तो जिसमें छोटे छोटे गांव या कुछ छोटी मोटी सिटीज़ हुआ करती थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है. और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ही नेचर ओरिएंटेड है. नेचर को हमेशा प्रेज़ करना, नेचर के बारे में से जुड़ कर रहना. जैसे यहाँ का फेस्टिवल हरेली, ओके, अ फेस्टिवल विच इज़ टोटली डिवोटेड टू नेचर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर कम्स साल फॉरेस्ट. Sal trees are most commonly found in the jungles of Ambikapur and Jashpur in Chhattisgarh. These areas experience heavy rainfall resulting in thick vegetation. तो यहाँ पे साल के ट्रीज़ मिलते हैं और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये जंगली इलाका है, आज भी ये बहुत प्रिजर्व्ड है, उतना डेवलप्ड नहीं है, उतना वास्ट डेवलप्ड नहीं है, बट अंडर डेवलपिंग है ये सिटीज़ भी. Though a variety of tree grow here, Sal is found in abundance. Abundance means बहुत ज़्यादा मात्रा में. Hence, their jungles are named after the sal tree as the sal jungles. The sal jungles are recognized by these tall trees. Its bark is black and hard and twisted. Bark यानी छाल. पेड़ जो होता है, पेड़ की ऊपर की जो लेयर होती है जो गिर जाती है छूने से, या किसी नोकीली चीज़ से अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें तो भी वो क्या होती है, निकल जाती है. मतलब द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रंक, ठीक है. स्टेम का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, जो पपड़ी सा होता है, उसको छाल कहते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे मसाले भी हैं, उसको भी हम यूज़ करते हैं. और ये बहुत मेडिसिनल नेचर का होता है. जो बार्क्स होता है, जो छाल होती है, ये बहुत मेडिसिनल नेचर के होते हैं. These trees shed their leaves in the month of March, April and look green all the year round.
Such trees are called evergreen trees. These forests look green and remain cool even in summers. So this is the reason why उधर का एरिया कैसा होता है, बहुत कूल होता है. ओके, सो दोज ट्रीज, वो ट्री जो साल भर ग्रीन होते हैं, वी कॉल देम एवरग्रीन ट्रीज. अपार्ट फ्रॉम क्ले, साल ट्री रिक्वायर हॉट एंड वेट क्लाइमेट टू ग्रो. ठीक है, तो सिर्फ मिट्टी के साथ साथ कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट और वेट. वेट यानी गीला, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए, इसलिए वहाँ पे बहुत बारिश भी होती है. यूज़, साल वुड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ अ फर्म एंड ड्यूरेबल. It is used for making doors, windows, furniture, etc. It is waterproof and hence is durable. ठीक है, जनरली लकड़ियाँ पानी से ही सड़ती हैं, बट जो साल ट्री है इट इज़ वाटरफुल, हैंस इट इज़ ड्यूरेबल. ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं. इफ़ वी गो, अगर हम मार्केट में पता करें तो मार्केट में दो लकड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा. वन इज़ साल एंड अदर इज़ सागौन, जो दोनों हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. Earlier, its wood was used for laying rail tracks and making sleepers. Today, sleepers are made of cement and concrete. Apart from this, sal is also used for making bridge, boat, tools and implements. Its bark and leaves are used in leather industry. Its juice, ral, is extracted to prepare incense, shoe polish, medicine for ear problems, etc. The oil extracted from its seed is used for making soap. So complete, अगर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को डिस्कस करें या रीड करें अगेन एंड अगेन, देन वी कम टू नो दैट द कंप्लीट साल ट्री, उसके हर एक पार्ट क्या है, यूज़फुल है. कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट करता है. If you come across a sal tree, you must observe its bark, leaves, flowers, fruit, etc. तो अगर आप किसी भी पेड़ के पास आते हैं, नॉट ओनली फॉर साल ट्री, बट देखो, ऑब्जर्व करो एंड स्पेशली इट्स बार्क, समझो छाल क्या चीज़ होती है. इफ़ यू हैपन टू फाइंड साल वुड, जस्ट लुक एट इट एंड टेल हाउ इट्स कलर इज. सो आंसर, साल ट्री बार्क इज ब्लैक, हार्ड एंड ट्विस्टेड. हाउ आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ साल यूज्ड? एग्जाम्पल, इट्स बार्क, seeds, fruit and leaves. Its bark and leaves are used in leather industry. Its fruit and seeds is used in making soap. Find out what are the things which are made with salwood. Answer, salwood is used to make door, window, furniture, boat, tools, etc. Okay, लगभग लकड़ी की जितनी चीज़ें होती है, everything can be made from sal. Next comes sagon jungles. The sagon jungles are found in the southwest area of Chhattisgarh. These trees remain green only for a few months after the monsoon. By the end of winter, its leaves dry up and by summer, the trees shed their leaves. As a result, the sagon jungles look withered and deserted during the summer season. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, साल ट्री कैसा है, एवरग्रीन है. एवरग्रीन यानी जो साल भर ग्रीन हो, जिसमें साल भर क्या होती है, पत्तियाँ होती है. पत्ती झड़ी, तुरंत न्यू पत्ती निकल गई. बट कुछ पत्तियाँ कैसी, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पत्तियाँ झड़ते हैं, फिर वो रुकते हैं, फिर उनके बाद एक सीज़न चेंज होने के बाद क्या होता है, उसमें पत्तियाँ आती है, पतझड़. ठीक है, तो सागौन में पतझड़ आता है, जिसमें ट्रीज़ में क्या होते हैं, अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, पुराने लीव्स को. सो ये समर में कैसे दिखते हैं, डेजर्टेड. ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ ग्रीनरी है ही नहीं. ठीक है, मरुस्थल, रेगिस्तान सा दिखता है. हाउ आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ सागौन ट्री यूजफुल? फाइंड एंड राइट. सो मेनली सागौन ट्रीज, वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोर, विंडो, फर्नीचर, एक्सेट्रा. Apart from sal and sagon, many others tree like shisham, mahua, kheer, bija, saja, tendu, bamboo, arjun, palash, mango, termite, etc. are also found in these jungles. और ये सारे मेडिसिनल या फिर मसाले वाले स्पाइस बेस्ड क्या है, प्लांट्स हैं. बीजा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर. साल, सागौन, बीजा, हम मेनली इनका ही फर्नीचर बनाते हैं. मेनली मैक्सिमम इनको ही क्या किया जाता है, प्रिफ़र किया जाता है. और किस लिए प्रिफ़र करते हैं, क्योंकि इनमें जल्दी कीड़े नहीं आते, क्योंकि इनको थोड़ा मेडिसिनल नेचर के होते हैं. सेकेंड, ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, जिसमें सबसे टॉप में साल है. ओके,
Tendu leaves, mahua, tamarind are means of livelihood for the local people. Many herbal plants are also found here. This is why Chhattisgarh is called the herbal state. If you talk in the history, Chhattisgarh was also called in very back, ठीक है, दंडकारण्य. तो ये बहुत इनिशियल से जंगल है. तो जो जंगल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत सारे हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्वांटिटी में क्या होते हैं. और जो एरियाज़ शुरू से जंगल रहे हैं वहाँ का वेदर भी क्या होता है उनके लिए बहुत परफेक्ट होता है. सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो जंगल प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों की लाइवलीहुड है. वो लोग वहाँ सुबह जाते हैं, उसको चुनते हैं. जैसे महुआ के फूल हैं, फूल झड़ गए तो फूल को चुना, तेंदू पत्ते को चुना, ठीक है. या किसी पेड़ में कोई फ्रूट आता है, जैसे इमली है, मशरूम्स हैं, पुट्टू कहते हैं, ठीक है, रुगड़ा, ये सारी जो क्या है जंगल के आइटम्स हैं. तो ये सारी चीज़ों को वहाँ से वो क्या करते हैं, चुन कर लाते हैं, बिन कर लाते हैं और उसे फिर यहाँ पर सेल करते हैं और सेल करके अपना लाइवलीहुड यानी अपना जीवन की अर्निंग करते हैं. एंड हेंस छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो नोन एज हर्बल स्टेट. मैनी अदर वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स how their leaves, wood, flower, fruits, etc. are useful to us. Fill up this information in a tabular form. If the deforestation goes on, how will the wildlife survive, think and write? So deforestation. The term deforestation means forest को decrease करना. D यानी decrease, ठीक है, कम करना. तो forest decrease कैसे होगा? By cutting down the trees. ट्रीज़ को कट करना. ओके, तो ट्रीज़ कट करना कभी भी अच्छी बात नहीं है. अभी हमने पढ़ा अबाउट साल कंप्लीट पेड़ हमारे लिए बेनिफिशियल है. कंप्लीट पेड़, उसके पत्ते, उसके फ्रूट्स, उसके फ्लावर्स, एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल टू अस. हमको हमेशा हर चीज़ में क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है. तो ट्रीज़ आर ऑलवेज गुड टू अस. तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू नो ट्रीज़. नो ट्रीज़ मीन्स नो फॉरेस्ट. दिस विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ. क्योंकि अगर जानवर हमारे समझ नहीं रह सकते, ओके, हर एनिमल सिविलाइज नहीं हो सकता, लाइक डॉग, काऊ. Find out from elders at house whether the jungle have increased or decreased in comparison to the past. If at all they have decreased, then, so first one, A, how has it affected the local tribals? तो obviously अभी हम डिस्कस किया about deforestation, ठीक है. तो जंगल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो now here is asking about local tribals. Due to decrease in jungle, it has affected the basic requirements of tribal peoples. ओके, तो उनको अब क्या करना पड़ता है, वो अपने गांव को छोड़ के शहर की ओर आ जाते हैं क्योंकि अब उनको उतना मटेरियल्स नहीं मिल रहा है, उतने काम नहीं मिल रहे हैं, जंगल कटते जा रहा है. जो छोटे छोटे गांव है वो शहर के अंदर क्या होते जा रहे हैं, काउंट अप होते जा रहे हैं. जैसे पहले था, रायपुर से आरंग जाते थे तो बीच में थोड़ा सा जंगल सा आता था, अब तो कुछ नहीं आता है. तो जो छोटे छोटे गाँव में बीच में पड़ते हैं वो सब क्या हो गए, अर्बनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं, शहरीकरण हो चुका है, उनका शहर बनने में जुड़ गए हैं. अब वहाँ पे उनको लाइवलीहुड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जंगल तो ख़त्म हो गया. जो वो पहले पुरानी एक्टिविटीज़ करते थे, खेत नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर आते हैं, रोज़ी करते हैं, डेली वेजेस के मजदूर के काम करने पड़ते हैं, माइग्रेंट्स कहलाते हैं. बी, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ. अब इसने वाइल्ड लाइफ कैसे अफेक्ट किया. डिक्रीज़ इन जंगल हैज़ रिजल्टेड इन डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ एनिमल्स. ओके, तो ये अर्थ बेटा, इट इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज़ फॉर एवरीवन. जो एनिमल्स, ह्यूमन, जितने प्रकार के जीव जंतु इस धरती पे हमें मिलते हैं, ओके, दिस अर्थ बिलोंग्स टू एवरीवन. तो इसको प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए जो ये लोग यहाँ रहते हैं उन सबका होना ज़रूरी है. ओके, सो एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. एनिमल्स रहें तो घने जंगल हैं तो ऑक्सीजन लेवल है, ओजोन लेयर की रिपेयरिंग है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है. अगर हमारा वेदर सही रहेगा तो हम सही रहेंगे, नहीं तो हर जगह वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा. ओके, इतना गर्म हो जाएगा कि हम तो वी कांट सर्वाइव ओवर हियर, भट्टी जैसा हो जाएगा, फिर तो भट्टी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा. ओके, सो एनिमल्स आर रिक्वायर्ड. डू यू नो दैट द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स, आइवरी. ओके, उनके जो दांत होते हैं, उनके दांतों के लिए उन्हें क्या किया जाता है, मारा जाता है. इन द सेम वे राइनो फॉर हॉर्न्स एंड टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन्स आर किल्ड. राइनोसॉरस होता है, उसकी नाक में एक सींग होती है, ठीक है, उसके लिए उसे मारा जाता है. एंड फॉर टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, उनकी स्किन, बॉडी, लेदर. इफ़ इन आवर कंट्री टाइगर एंड इन आवर स्टेट एनिमल बाइसन एंड स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना, numbers have lessened.
So much that our government is protecting many forests to conserve these birds and animals. In these forests, people are prohibited to harm animals and the forest. These are known as सेंचुरीज़. सो सेंचुरीज़ क्या होता है, एक ऑलरेडी फॉरेस्ट होता है जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है कि ये एरिया क्या हो गया, ये सेंचुरी हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं. जैसे लाइक बान नवापारा, ओके, तो उसको सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब वहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई भी बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकता. वहाँ का लोकल पीपल भी जल्दी किसी पेड़ को नहीं काट सकता. अगर उसे अपने घर पे खाना पकाना है तो जो पेड़ से झड़ की गिरी हुई लकड़ियाँ हैं वो उसको चुन के ले जाएगा, ठीक है. वो अपनी मन इच्छा के अनुसार वहाँ पे जाके कटिंग करना या हंटिंग करना ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता. Find out where are the sanctuaries for conservation of animals in our state. So here are some: Achanakmarg, Sita Nadi, Bhoramdev, Barnavapara and many more. Next comes conservation of forest. Cutting of trees is banned in forest. If the forest catches fire, it causes heavy loss. Hence, the workers of the forest department regularly clean the dry grass, leaving patches of clean ground in the center. Care is taken that no damage is caused to the tree by bugs and insects. Okay, तो उनके कारण भी क्या होता है, ट्री कई बार सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर केयर किया जाता है. केयर करना क्यों ज़रूरी है? एक पौधा गमले में लगाना अलग बात होती है, बट एक पूरा जंगल बनाना अलग बात होती है. ओके, अगर आज हम सर्वाइव कर रहे हैं बच्चों, हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज फॉरेस्ट. ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं हमारा गमले का पौधा नहीं करता. ओके, सो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट कम्स व्हाट वी हैव लर्न, क्वेश्चन आंसर्स. ओरल क्वेश्चन, फर्स्ट वन, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर वी फाइंड डेंस फॉरेस्ट. डेंस यानी थिक, घना जंगल. आंसर, dense forests are located in Bastar, Ambikapur, Jashpur area of Chhattisgarh. Second question, how is the sal wood useful to us? Answer, sal wood is used to make door, window, furniture, boat and tools, etc. Third comes, name the trees found in the forest of Chhattisgarh. Answer is, the trees found in the forest of Chhattisgarh are sal, sagon, teak, mahua, sisam, haldu, amla, bamboo, etc. Written question, first one, why is the sal tree so special? Answer, sal tree is special because it is waterproof and durable. Its wood is used for making doors and windows. Its bark and leaves are used in leather industry. Its juice, ral, is used for incense, khushbu, shoe polish. The oil extracted from its seed is used in making soap. So these are the benefits of sal tree. ठीक है, हम उसको पूरा पार्ट का क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं. नथिंग इज़ वेस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ छत्तीसगढ़ कॉल्ड द हर्बल स्टेट? आंसर, छत्तीसगढ़ इज़ कॉल्ड द हर्बल स्टेट बिकॉज many herbal plants are found here. Third one, name the creatures found in these jungles. So answer is, the creatures found in these jungles are tiger, deer, elephant, bear, variety of birds. Fourth question, how can deforestation affect us? So answer comes, deforestation means cutting down of trees. It affects our first, decrease in plants कम हो जाते हैं. सेकेंड, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वो तो जंगलों में रहते हैं ना, घने जंगलों में रहते हैं एनिमल्स. अब जंगल नहीं रहेंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, तो उनका हैबिटेट यानी उनका घर ख़त्म हो गया. थर्ड वन, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, जंगलों में बहुत बारिश होती है बट क्या कभी जंगल में बाढ़ आते हैं?
नहीं, बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी को ग्राउंड में, ओके, ज़मीन के अंदर खींच लेते हैं, और वही पानी फिर हम क्या करते हैं, कुआँ बोरवेल करके हम निकालते हैं ना ज़मीन के नीचे से पानी, तो ये लोग वो पानी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। नीचे पानी कौन भरता है? ट्रीज़ भरता है नीचे। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल। ठीक है, पेड़ कट जाने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे कितनी भी गर्मी हो, हम जैसे हम पेड़ के नीचे आके बैठते हैं, छाया में बैठते हैं, तो छाया में कैसा लगता है? गर्म का लगता है क्या? नहीं, कम लगता है। ठीक है, धूप में खड़े होने से जब हम छाया में आते हैं, पेड़ की छाया में खासकर, ठीक है, घर की छाया या एल्बेस्टर की छाया में नहीं बेटा, जब पेड़ की छाया में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है और राहत लगती है। तो इस कारण से क्या होता है? टेम्परेचर, तापमान नहीं बढ़ता, गर्मी नहीं होती है पेड़ों के कारण। और पोल्यूशन भी क्या होता है? कम होता है। चाहे अच्छा पानी हो, गंदा पानी हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, कचरे हैं तो उसको क्या करें? डिकम्पोज कर देते हैं उसके आसपास रहने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जो भी। ना कम्स फिफ्थ पॉइंट, सॉइल इरोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप देख रहे होंगे टीवीज़ में बहुत बाढ़ आ रही है, बाढ़ आती है तो पानी का कलर कैसा होता है? मिट्टी का कलर होता है। ठीक है, तो जब पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जब पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है, इसी प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऊपर की मिट्टी, जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है। क्यों बह जाती है? क्योंकि मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो मिट्टी को पकड़ता कौन है? मिट्टी को पकड़ता है ट्रीज़, उसका रूट्स। ठीक है, वो मिट्टी को होल्ड करता है, उसको पकड़ के रखता है। अगर हम ट्री कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो मिट्टी क्या हो गई? फ्री हो गई। फ्री हो जाएगी तो उसको पानी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। Next comes fifth question. Compare the forest of Sal and Sagon on the basis of the following types. So first, district where they are found: Sal in Jashpur, Sagon in Bastar. Second one, use of bark: Sal for leather, Sagon for medicines. Third, use of wood: Sal for furniture, Sagon also for furniture. Okay, everything. Fourth one, use of seeds. Seeds यानी उसके बीज. So sal for oil and sagon also for oil. Fifth one, time when they shed their leaves. So sal trees shed their leaves in spring season. Spring season में उसकी पत्तियाँ झड़ती है. Okay, and sagon in summer season.